कस्टमर्स के बारे में सोचना और उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना। कि हमें काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आते हैं, ईमेल भी आता है। तो आप लोग अपने राइवल्स से कैसे कम्पीट कर रहे हैं? आपकी क्या अलग स्ट्रैटेजी है? आज सुबह ही मेरा मीटिंग चल रहा था किसी के साथ दैट वाज़ अबाउट फेम 2 उसमें आइवोमी का फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान कैसा है? इलेक्ट्रिक व्हीकल के 5 साल चलेगी। Hello everyone, my name is Varnika, and today it's a privilege to have Mr. Ashwin Bhandari, the CEO and co-founder of Ivomi Energy, with us. Thank you, sir, for being here and to share some insights about Ivomi and its future plans. Thanks a lot, Varnika. Appreciate your invitation and having this connect to the consumer and the market. We are always happy to share the insight about the company and the latest update. Ivomi Energy has been a young team. We are a young team working towards creating the future of electric vehicle mobility in the country with two-wheeler category. We are focused on the electric two-wheeler category and working since 2018 towards creating stable, reliable two-wheelers. And we are proud to tell everybody that we have two on completely compliant RTO registered models, out of which one model is running on road since 2020, and the second model which got launched, GTEX, which is our flagship today, last year in the month of January. So both the models has been extremely successful and running and being used by a lot of consumers for over few years now. So, thank you. Additionally, I'd also like to tell you that we are amongst the very few players who is making their own batteries also. So Ivomi scooters are powered by Ivomi engineered batteries. So all these scooters comes with Ivomi engineered battery. So the advantage it actually gives is the serviceability part of it. Making batteries is really tough and adds a lot of complexity to overall supply chain and the engineering piece of it, supply chain and the manufacturing part of it. But the advantage and the requirement is the end consumer gets a lot of flexibility and advantage in terms of serviceability, because we are not dependent on anybody else to service our scooters and the batteries. If we have a battery as a component from any of the vendors, the serviceability has an additional leg which today counts to a lot of delays and hassles in the overall experience to the consumer. So all the Ivomi scooters are powered by Ivomi engineered batteries. Okay, that's really inspiring to hear. So, I would like to ask few questions from you. So, my first question is, आपको कैसे लगा कि आइवोमी को इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में एंटर करना चाहिए? अराउंड 2019 की बात है, 2018 की बात है. आई हम्म, वाज स्टिल देयर इन चाइना. तो हम्म, चाइना में रहते वक्त 2018 में ऑलरेडी शेंजन जिस शहर में मैं रहता था, हम्म, कंप्लीट पब्लिक मोबिलिटी इलेक्ट्रिक हो चुकी थी. वहां पर कोई टैक्सी हो, मेट्रो हो, बस हो, या रिसेंटली हम लोग वहां पर दीदी होता है उबर की तरह. Didi हम्म, is an app for the cab sharing, the हम्म, on platform cab. So ये सारी कैटेगरी में आपको इलेक्ट्रिक गाड़ियां इजीली देखने मिलती थी. बड़े शहरों में वहां टू व्हीलर ना होने की वजह से आपको टू व्हीलर दिखाई कम देते थे. बट मेतवान है जो कि वहां का स्विगी आप समझिए, जो डिलीवरी होता है फूड का, वो एक कैटेगरी एक ऑल ऑफ सडन 2018 में वहां ग्रो होने लगी थी. तो वो टू व्हीलर कैटेगरी आई, वो भी कंप्लीटली इलेक्ट्रिक थी डी सिंस डे वन. मेट्रो के बाहर आप निकलो तो आप बहुत सारी टू व्हीलर टैक्सीज दिखाई देगी आपको, वो भी इलेक्ट्रिक हुआ करती थी. तो जी, मुझे हमेशा से ये लगता रहा है कि टू इलेक्ट्रिक जो कैटेगरी है इन दी मोबिलिटी, ये भविष्य है. क्योंकि पोल्यूशन एक प्रॉब्लम है, जियो पॉलिटिकल जो ओवरऑल सिचुएशन रहा है लास्ट 20 साल से, फ्यूल जो क्रूड ऑयल है, ये हम्म, सबसे दिस इज द रूट फॉर ऑल दी जियो पॉलिटिकल इश्यूज अक्रॉस द वर्ल्ड. सो इसमें जो अनसर्टेनिटी है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फ्यूल बीइंग इंपोर्टेड इन मल्टीपल कंट्रीज एंड फ्यूल इज ओन्ड बाय ओनली फ्यू कंट्रीज, ये सारे जो प्रॉब्लम है, तो जियो पॉलिटिकल चैलेंज हमेशा से रहा है. पोल्यूशन प्लस जियो पॉलिटिकल सिचुएशन प्लस द इम्पोर्ट बिल. हम्म, जब भी एक इकोनॉमी ट्रेडिंग इकोनॉमी से मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी की तरफ शिफ्ट हो रही होती है, तो उसका सबसे बड़ा एक ट्रेड डेफिसिट जो होता है, एक सबसे बड़ा कंसर्न होता है, जो मोदी जी के आने के बाद से हमारे कंट्री ने काफी फोकस किया है. तो हमें ये 2018 में क्लियरली दिखाई दे रहा था कि ये अब समय है जब हमारे देश में ये इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ एक बहुत अच्छा पुश आना है. हालांकि ये प्रोडक्ट्स, ये टेक्नोलॉजी जो है, ये काफी पुरानी है, काफी जगह यूज हो रही है दसों साल से.
बट इंडिया में इसके न होने के कुछ और कारण हुआ करते थे। तो वो कारण हमें दिखाई दे रहे थे कि ये कंप्लीटली अब सप्रेस होने लगे हैं, और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रमोशन के लिए जो हम्म, जरूरतें हैं, जो प्रिलिमिनरी इंपॉर्टेंस है, लाइक इंपोर्ट बिल के ऊपर इकोनॉमी का फोकस होना, फाइनेंस मिनिस्ट्री का फोकस होना, G20 में सारी मीटिंग में कार्बन के बारे में बातें होना, पोल्यूशन कम करने के ऊपर इनिशिएटिव्स होना, एनवायरनमेंट के क्लीनलीनेस की तरफ बात होना, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग को पुश बढ़ता जाना, ये सारे जो फैक्टर्स है, ये सारे फैक्टर्स हमें ये बताते हैं कि इलेक्ट्रिक मोबिलिटी विल बी द बेस्ट सॉल्यूशन टू ऑल दिस प्रॉब्लम्स। सो हम्म, 2018 में हमने ये प्रॉब्लम्स को एनालाइज करते हुए ये समझा कि लॉन्ग टर्म में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ये बहुत अच्छी स्पेस होगी। ये स्पेस से हम लोग हमारे कंज्यूमर को कुछ अच्छी चीज दे सकते हैं। हम हमेशा से इसलिए फोकस होते हैं कि हम कैसे कोई अच्छी चीज, नई चीज, भविष्य के लिए रेडी रहती हुई कोई टेक्नोलॉजी कस्टमर के लिए कैसे ला सकते हैं। हमारी ये फोकस रखते हुए हमने ये प्रोडक्ट कैटेगरी में एंट्री करी। 2019 में हमने लो स्पीड प्रोडक्ट लॉन्च किए। लो स्पीड प्रोडक्ट ने हमें अलाउ किया कम स्पीड में, कम रेगुलेशन के साथ हम प्रोडक्ट का R&D और ट्रायल कर पाए। और फिर 3 साल के R&D के बाद 2021 में हमने हाई स्पीड प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, और आज 21, 22, 23 मोटा मोटी आप समझिए 2.5 साल हो गया है जब हम हाई हम्म, स्पीड प्रोडक्ट कैटेगरी में भी काम कर रहे हैं। तो ये सारी जर्नी जो रही है काफी एक्साइटिंग रही है। Since the day one we made a call of getting into electric vehicle in 2018, since then I have been working hard, and the team has really put a lot of efforts in understanding the product, understanding the details, going on ground, talking to the consumer, talking to the dealers, talking to a lot of technology vendors, understanding what battery, what size, what motor, what capacity, what seat size, कि सीट कितनी होना इंपॉर्टेंट है, पैर के पास लेग रूम कितना होना जरूरी है, हम्म, हैंडल की हाइट कितनी होनी चाहिए, ग्राउंड से सीट की हाइट कितनी होनी चाहिए। इस डिटेल्स पे जा जाके हमने चीजों को समझ के हमारे प्रोडक्ट्स बनाए हैं। और अब हम इस परिस्थिति में है कि वी आर वेरी श्योर नाउ द प्रोडक्ट्स आर 90%, 90+% मच्योर्ड। ऑल्सो कल ही मेरे साथ एक बैटरी टीम के किसी बंदे ने लिखा था कि सर काइजन पॉइंट कभी अचीव नहीं हो पाता। तो मैं सभी से ये कहता हूँ कि इट इज ऑलवेज अ कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट प्रोसेस, जहां आपके प्रोडक्ट में हमेशा कुछ ना कुछ होगा। But we are really happy to tell you that we are very close to a completely matured product, and we are delivering that to a lot of consumers, and we are there to service and upgrade the products. हमारा कमिटमेंट है हमारे सारे कंज्यूमर्स को कि हम लोग सर्विस के लिए हमेशा फोकस्ड रहेंगे, बिकॉज मैंने हमेशा माना है मोबिलिटी इलेक्ट्रिक स्कूटर ये कैटेगरी जो है, ये प्रोडक्ट तो मुझे लगता है 30-40% है, बट इट इज 60-70% ऑफ इट इज ओनली सर्विस। अगर हम प्रोडक्ट को सर्विस नहीं कर पाए तो इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर, जहां रास्तों की जो ओवरऑल एनवायरनमेंट जो परिस्थिति है, जो ओवरऑल राइडिंग पैटर्न है कंज्यूमर का, हर टाइप का कंज्यूमर है यहाँ पर, जो अपने ऊपर मतलब सिलेंडर तक ले जाना चाहता है, 4 बच्चों को भी बिठाना चाहता है, अपने छोटे से परिवार को लेके हर शहर में हर जगह घूमना चाहता है। और अब डिलीवरी आने के बाद ऐसा हो गया है कि लोग इसको बिजनेस के लिए भी यूज करना चाहते हैं। तो इलेक्ट्रिक ये टू व्हीलर जो है, इसमें रिक्वायरमेंट बहुत वर्सेटाइल है। तो इसमें डेवलपमेंट करते रहना है, और हमें अच्छी प्रोडक्ट की तरफ, सर्विसेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ते रहना है। थैंक यू सर इतना इंसाइटफुल आंसर देने के लिए। बहुत अच्छा लगा कि आईवोमी इतना ज़्यादा कंज्यूमर्स के बारे में सोचता है, बिकॉज दीज डेज वी जस्ट सी कि कंपनीज आजकल मार्केटिंग और उनका प्रोडक्ट कैसे बिक जाए बस इस चीज़ पे फोकस करते हैं। सो दैट्स रियली इंस्पायरिंग। तो गोइंग फॉरवर्ड मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि हम लोग इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इतना लार्ज स्केल अडॉप्शन देख पा रहे हैं, उसके पीछे पोटेंशियल रीजंस क्या हैं? और क्या आने वाले समय में भी हम लोग इतना ही अमाउंट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स रास्ते पे देख पाएंगे, या हम कुछ और भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आज सुबह ही मेरा मीटिंग चल रहा था किसी के साथ, दैट वाज अबाउट फेम 2। जी। उसमें हम ये बात कर रहे थे कि क्यों बाइक कैटेगरी, जो एक वो होती है बाइक कैटेगरी जिसमें गाड़ियां चल रही होती है, बाइक कैटेगरी वहां पर ज्यादा एक्सेप्टेंस नहीं देख पा रहे और स्कूटर में ज्यादा देखा जा रहा है। आप हम्म, एक बात अगर आप गौर करोगे तो स्कूटर कैटेगरी जो है उसमें गैसोलीन में जो लोगों के पास ऑप्शन है, उधर ओवरऑल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो गाड़ी का है, जिसमें 2.5 से 3 रुपया पर किलोमीटर कॉस्ट आ रही है लोगों को, और डिस्टेंस वो जो ट्रैवल करते हैं वो समझिए आप मैक्सिमम एवरेज में द डेटा सेज 25 किलोमीटर के आसपास डेली राइडिंग होता है। तो इन सबको अगर आप मद्देनजर रखते हुए एक बार अगर आप इवेल्युएट करोगे, तो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की जैसे जैसे लाइफ और रिलायबिलिटी, ये दो फैक्टर बढ़ते चलेंगे, दिस कैन कंप्लीटली रिप्लेस द गैसोलीन स्कूटर्स। हमारे देश में करीब
10 लाख के करीब प्लस माइनस 10%, 10 लाख के करीब स्कूटरें बिकती है आज, जो कि स्कूटर कैटेगरी है जो पेट्रोल पे चलती है। गवर्नमेंट इस तरीके से पुश करना चाह रही है ताकि जियो पॉलिटिकल रीजन की वजह से पेट्रोल या क्रूड ऑयल का इंपोर्ट हो, या पोल्यूशन रीजन हो, या ओवरऑल मैन्युफैक्चरेबिलिटी रीजन हो, या भविष्य का फ्यूचर टेक्नोलॉजी रीजन हो, कि हम लोग टू व्हीलर में ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट हो जाए। फर्स्ट रीजन। सेकंड रीजन जो मैंने अभी आपको बताया, 2.5 से 3 रुपया किलोमीटर कॉस्ट और ओवरऑल 25 किलोमीटर का राइडिंग, ये इलेक्ट्रिक गाड़ी में 100% अचीवेबल है। आज हम लोग जो डिफरेंस रखते हैं, वो डिफरेंस रखते हैं शायद लाइफ का एक डाउट मन में है एक उपभोक्ता के, एक कंज्यूमर को लेते वक्त, कि भाई आज शायद गैसोलीन का जो स्कूटर है जो 20 साल से इंजीनियर्ड है, 20 साल से अपने देश में रास्ते पे चल रहा है, वो शायद 3 साल 5 साल चल जाता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या 5 साल चलेगी। ये एक ही फैक्टर है जो हमें अब सॉल्व करनी है। ये फैक्टर जैसे जैसे मार्केट में कंज्यूमर का ट्रस्ट की तरफ बढ़ता जाएगा और सॉल्व होता जाएगा, आप ये समझिए कि पूरा गैसोलीन सेक्टर इलेक्ट्रिक से रिप्लेस हो जाएगा। बिलो 125 सीसी, जहां कस्टमर का राइडिंग 25 किलोमीटर एवरेज से कम है, 30 किलोमीटर से एवरेज कम है, या उसकी ओवरऑल जो ड्राइविंग कॉस्ट है, ये कैटेगरी जो है ये कंप्लीटली रिप्लेस हो जाएगी इलेक्ट्रिक से, ये मैं मानता हूँ। इसमें 3 से 5 वर्ष का समय लगेगा ज्यादा से ज्यादा। तो दिस इज द सेकंड important reason why we believe that it is a growing space and it will surely sustain. And third most critical and important is कि एक बदलाव, मतलब आप गैसोलीन में देयर इज अ लिमिटेशन ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन अडॉप्ट, यू नो। आप क्या हिल होल्ड लगा सकते हो, क्या आप इसको आईओटी से इजीली कनेक्ट कर सकते हो, क्या आप इसको ओवरऑल जो एक क्या कहते हैं ना, इंजन को बाहर निकाल के रिप्लेसेबल कर सकते हो, जैसे हम बैटरी को रिप्लेसेबल कर सकते हैं ताकि बैटरी की कॉस्ट हम बाहर निकाल दें। इस तरीके के जो टेक्नोलॉजिकल नए इनोवेशंस है, वो तीसरा बहुत बड़ा फैक्टर है जो इसकी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। जहां आप ये अपेक्षा कर सकते हो कि 2 वर्ष के अंदर बड़े शहरों में एक टू व्हीलर खरीदने की कीमत 60,000 से अंदर हो जाएगी, क्योंकि वो जो बैटरी है, वो बैटरी आपको खरीदनी नहीं है, आप वो रेंट पे यूज कर सकते हो, पर किलोमीटर चला के पैसा दे सकते हो। जैसे आप पेट्रोल भरते हो, तो पेट्रोल की कॉस्ट आज कंज्यूमर समझता है, बट बैटरी वो खुद खरीद रहा है और उसको उसकी मंथली कॉस्ट नहीं देनी पड़ रही है, ये हर कोई समझ नहीं पा रहा है। तो इसके लिए एक और कैटेगरी खुलती जा रही है जहां पर बैटरी बेची नहीं जाएगी, बैटरी रेंट की जाएगी। तो 60,000 के अंदर अगर गाड़ी अवेलेबल हो जो लेटेस्ट फीचर के साथ हो, आप अपने मोबाइल फोन से उसको लॉक कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो, उसका लोकेशन फिक्स कर सकते हो, लोकेशन फाइंड कर सकते हो, डेटा चेक कर सकते हो कि भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, मेरी मोटर कैसी परफॉर्म कर रही है, मेरी बैटरी कितना पावर खा रही है। आप इंजीनियरिंग लैंग्वेज से सोच सकते हो, हम आपको और डेटा दे पाएंगे, हम आपकी ड्राइव ट्रेन को मच्योर कर पाएंगे, आपको पर्सनलाइज एक्सपीरियंस दे पाएंगे। आप जिस तरीके से गाड़ी चलते हो, हम आपकी कंट्रोलर की प्रोग्रामिंग जो है उस तरीके से ट्यून कर पाएंगे। तो ये जो तीसरा एक बहुत बदलाव वाला जो कारण है, जो मैं मानता हूं कि आपको भविष्य से रिलेटेड नए नए फीचर्स, नई नई टेक्नोलॉजी, ये आपको कंज्यूम करने मिलेगी, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक में पॉसिबल है। तो ये जैसे जैसे आप बेटर एडॉप्शन की तरफ मूव होंगे, आप देखोगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक प्रेफर कर रहे हैं। उसके 3 कारण होंगे। गवर्नमेंट की सहायता करना है, गवर्नमेंट की एक जो विजन है उसे हमें अडॉप्ट करना है। दूसरी, आपको एक बेटर प्रोडक्ट मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। और तीसरी, आप भविष्य के बदलाव टेक्नोलॉजी की तरफ अपने आप को अपग्रेड कर रहे हो। या सर, थैंक यू सर। आपने बदलाव की बात करी, उससे मेरा तीसरा क्वेश्चन आता है कि आप लोग ने अभी रिसेंटली में अपना नया टैगलाइन इंट्रोड्यूस किया है, बदलते भारत का नया चेहरा। तो उसके पीछे क्या आइडिया है आईवोमी का, और कंपनी एज अ ब्रांड उससे कैसे बेनिफिट उठा सकती है? देखिए, बेनिफिट ये शब्द में आई हैव अ डिफरेंस। हमारा इंटेंशन ये रहा है कि इस लैंग्वेज से हम लोग हमारी एक पहचान, हम लोग हमारा एक नाम एज अ इंडियन कंपनी, एज अ इंडियन इंजीनियर्स, मार्केट में हर किसी के दिमाग में हम लोग एक रिश्ता बना पाए। मतलब बदलते भारत का बदलता चेहरा, तो हम सारे भारतीयों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जब हम इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की तरफ, फ्यूचर ऑफ नई मोबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि गाड़ी में जो जिस तरीके का सफर होता था उसमें एक बदलाव आ रहा है। तो ये एक भारत का बदलता हुआ जो चेहरा है, बदलता हुआ जो एक रूप है, उसमें हम एक नए चेहरे की तरह उभरना चाहते हैं। दिस इज द ओवरऑल विजन और माइंडसेट बिहाइंड द टैगलाइन। दिस इज वन। अब हम जब ये कर रहे हैं,
तो हम किस तरीके से कर रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, बदलाव किस तरीके से आने वाला है या किस कारणों से आने वाला है, वो बदलाव को मद्देनजर रखते हुए हम कैसे अच्छी सर्विस और अच्छी प्रोडक्ट हमारे हर कंज्यूमर तक पहुंचाते रहे और पहुंचा सके, इसके ऊपर हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। हम लोग कमिटेड रहेंगे। हम जितने लोग इस परिवार से जुड़े हैं और जितने लोगों को हम इनडायरेक्टली कंज्यूमर के माध्यम से या हमारे वेंडर के माध्यम से या हमारे डीलर के माध्यम से हम जोड़ेंगे, हम सभी से ये चाहेंगे कि ये विजन लेके हम लोग इसको आगे बढ़ाते रहे। बिजनेस जो है शायद डिले होगा बट डिनाई नहीं होगा, ये मैं श्योर हूँ। हमारे प्रोडक्ट जो है शायद थोड़े दिन बाद ज्यादा रोड पे दिखाई देने लगेंगे, थोड़े करते करते बढ़ते दिखाई देंगे, बट 100% दिखाई देंगे, ये विश्वास के साथ हम काम कर रहे हैं। थैंक यू सर। एक बहुत पॉजिटिव नोट पे आपने अपना आंसर एंड किया है। तो आई एम क्यूरियस कि आईवोमी, आपने स्वैपेबल बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी, तो आईवोमी कैसे स्वैपेबल टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में इनहेरिट कर रहा है और फ्यूचर प्लान्स क्या हैं इस टेक्नोलॉजी को लेके आपके? I don't know, but 2018 में that was the first project I took in my hand, where I've designed a swap station in 2018. So while मैं जब चाइना में रहता था तो मैंने एक swap station और swappable बैटरी ये डिजाइन की थी। तो कंट्रोलर का मतलब कनेक्टर जो है गाड़ी में, उसका पोजीशन क्या होना चाहिए, बीएमएस गाड़ी बैटरी के अंदर होना चाहिए या बाहर होना चाहिए, क्या एक पावर मैनेजमेंट यूनिट अलग से होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, बैटरी का साइज कितना होना चाहिए, वजन कितना होना चाहिए, हैंडल कहाँ होना चाहिए। मैं आपको ये गहराइयां इसलिए बता रहा हूँ कि जब एक बैटरी स्वैपेबल बैटरी का डिजाइन होता है तो उसमें ये सारे फैक्टर्स को ध्यान में दिया जाता है। बिकॉज बैटरी अगर स्वैपेबल है, इसका मतलब वो आप जैसे लोगों को भी पिक करनी है, तो अगर वो 15 या 20 किलो की है तो वर्णिका को शायद दिक्कत होगी, बट अगर वो 8-9 किलो की है तो शायद भूमिका या वर्णिका उसको इजीली उठा पाएंगे। तो हमारे देश में काफी यंग लड़कियां भी है जो कि गाड़ियां यूज करती है। तो वजन हुआ, हैंडल शुड नॉट बी पिंचिंग, हैंडल चुभने वाला नहीं होना चाहिए, हैंडल इस तरीके का हो कि वो सॉफ्ट हो, हैंडल का पोजीशन कैसा होना चाहिए, बैटरी का साइज कैसा होना चाहिए, क्या वो ब्रीफ केस जैसा हो ताकि इजीली कैरी करे, या वो सिलेंडर की तरह हो ताकि वो अच्छा वॉल्यूम कैरी कर पाए। ये सारे फैक्टर उस पर काम करना होता है। तो आप अगर इलेक्ट्रिक आइवोमी की कोई भी स्कूटर देखो तो डे वन से हमारी सारी स्कूटर सिंगल बैटरी के ऊपर आती है, मतलब सेम साइज डिमेंशन के ऊपर आती है, और सारी बैटरीज जो है वो रिमूवेबल रही है। और वो बैटरी की जो रिमूवेबल फंक्शनैलिटी है, हमें स्वैपेबल माइंडसेट से हमने उसे शुरू किया था, बट आज 5 साल काम करने के बाद मैं आपको ये प्राइड के साथ बता पा रहा हूँ कि इसकी सर्विसेबिलिटी बहुत अच्छी हो गई। कोई कोने में अगर एक कंज्यूमर की बैटरी अगर खराब हो जा रही है तो हमारा डीलर ले जाके उसकी बैटरी चेंज कर दे रहा है वहीं पर, ताकि वो गाड़ी शुरू हो जाए और वो बैटरी जहां सर्विस हो सकती है वहां आ जाती है और सर्विस होकर रिटर्न चली जाती है। गाड़ी को खोलना नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ गाड़ी की सीट ऊपर करना है और बैटरी को बाहर निकालना है और बैटरी बदल के आप आगे बढ़ जाएंगे। तो मुझे ये समझ आ रहा है कि ये जो इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है जो गाड़ी की ब्रेकडाउन कंडीशन जो है, ब्रेकडाउन सिचुएशन जो है, वो बहुत रिड्यूस कर देता है। मतलब आज गाड़ी में 80% और 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स सिर्फ बैटरी की वजह से आ रही है, और अगर आप बैटरी को डिटैचेबल कर देते हो तो आपकी जो गाड़ी है वो गाड़ी की मूवमेंट प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। डे वन से ये चीज को मानते हुए हमारी सारी गाड़ियों को स्वैपेबल रिमूवेबल बैटरीज पे बनाया था। उसके बाद हमें सेकंड लेवल पे समझ में आया कि इसमें एडिशनल ये भी एक एडवांटेज है। तो हम डे वन से स्वैपेबल बैटरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। हालांकि 2018 में जो कंज्यूमर की नीड हुआ करती थी बैटरी को लेके, और आज जो कंज्यूमर की नीड है बैटरी को लेके, ये कंप्लीटली चेंज हो चुकी है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये मार्केट इवॉल्विंग है। पहले लोगों ने 60 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी भी एक्सेप्ट करी, लेड एसिड की बैटरी भी एक्सेप्ट कर ली, लिथियम को लोगों को समझने में समय लग गया। आज कंज्यूमर एक माइंडसेट और एक स्टेबिलिटी पे आ गया कि भाई 120 किलोमीटर से कम चलने वाली बैटरी लेना इज नॉट एक्सेप्टेबल। मतलब मैं कितना चलता हूँ वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेरे गाड़ी में इतना ईंधन होना चाहिए कि मैं मुझे जरूरत पड़े तो मैं इतना चलूं। गाड़ी जो कंज्यूमर लेता है वो जरूरत के हिसाब से नहीं लेता। जरूरत मतलब एक दिन, पूरे साल में जो एक दिन मुझे जरूरत पड़ जाएगी उस हिसाब से लेता है। ये हमें समझ आया है, ना कि ये सोचता है कि मैं रोज से भले 10 किलोमीटर चलता हूँ तो मैं 200 किलोमीटर या 100 किलोमीटर चलने वाली गाड़ी क्यों लूं। वो ये सोचता है कि हो सकता है किसी एक दिन मुझे इसकी जरूरत पड़ जाए तो मुझे वो गाड़ी की जरूरत, मुझे वही गाड़ी खरीदनी है। तो 120 किलोमीटर जो है ये एक आइडियल बैटरी रेंज कंडीशन आ गई है। तो इसके साथ हमें ये समझ आ गया कि अब हमें किस तरीके की स्पीड, किस तरीके की बैटरी को लेके स्वैपेबल बैटरीज और स्वैप स्टेशंस बनाने हैं। लास्ट ईयर हमने ये सारे फैक्टर्स कंक्लूड कर दिए थे, मतलब 2022 में। अभी 2023 जस्ट शुरू हुआ है।
आई एम एक्सपेक्टिंग बाय एंड ऑफ दिस ईयर हम लोग एक बैटरी का कंप्लीट नया रूप लॉन्च करेंगे जो कि भविष्य के लिए रेडी होगा. इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ व्हाट द कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग. और वो बैटरी के साथ हम हमारा स्वैप स्टेशन भी रिलीज करेंगे जिसको देख के आप अपनी बैटरी को कहीं भी जाके स्वैप स्टेशन में एक्सचेंज कर पाओगे और एक्सचेंज करके आप अपने आप को हमेशा हमेशा फुल चार्ज मोड में रख पाओगे और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का अनलिमिटेड एडवांटेज, अनलिमिटेड ड्राइविंग एडवांटेज ले पाओगे. थैंक यू. ओके। तो सर आपने जैसे स्वैपेबल स्टेशंस की बात करी, तो आपके दिमाग में ऐसे कोई टारगेटेड सिटीज़ हैं कि पहले इनको टारगेट करेंगे और फिर उसके बाद हम लोग स्लोली एंड ग्रेजुअली टियर 2 टियर 3 में मूव ऑन करेंगे? आपका क्या प्लान है इसको लेके? Then see, it is only about the network strategy, the consumer acceptance. So I have always focused on tier 2 first. मतलब जो एकदम बड़े शहर है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, which are reasonably complex in terms of the overall geography and the infrastructure the government could build. उसके अलावा अगर आप नए जमाने के शहरों को देखो, अहमदाबाद, सूरत या नागपुर या मैसूर या इंदौर या भोपाल या अगर ऊपर की तरफ चले जाओ आप चंडीगढ़, जो नए जनरेशन के शहर अपने देश में बने हैं, मुझे ऐसा लगता है ये रीजनेबली वेल डिजाइंड है, रीजनेबली वेल स्ट्रक्चर्ड है. इसमें रिंग रोड की प्रोविजनिंग डे वन से हुई है. इसमें जिस तरीके से क्लस्टरिंग हुई है, जिस तरीके से सेक्टरिंग हुई है, नोएडा आप जाओ तो यू कैन वेरी वेल अंडरस्टैंड एवरीथिंग विदाउट गोइंग और इवन गोइंग फॉर वंस. मुंबई आज 100 बार भी चले जाओ तो कोई सेक्टर नहीं, मतलब समझने में आपको समय लगेगा, बट नोएडा में आप सेक्टर 12, सेक्टर 92, सेक्टर 95, सेक्टर 83 इस तरीके से आप इजीली समझ जाओगे कि हाँ उस एरिया में आसपास वहां की बात हो रही है. तो मुझे ऐसा लगता है कि टियर 2 विल बी माय प्राइमरी फोकस for two reasons. Because swapping network designing will be a challenging job. It is like an ATM designing कि ATM कंपनियों ने 15 वर्ष लगा दिए और आज फाइनली आप देखो तो शायद बगल बगल में 2 ATM आपको इजीली दिखाई देते हैं. तो इट इज अनऑप्टिमाइज्ड इन्वेस्टमेंट ऑफ रिसोर्सेज. ऐसा नहीं कहना चाह रहे हम कि वो 2 बगल बगल में खड़े ATM गलत है, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज की वेस्टेज हो रही है जो कि हमें ऐसा लगता है कि नहीं होनी चाहिए और हम उसको ऑप्टिमली डिजाइन करना चाहते हैं. तो हम टियर 2 शहरों पे फोकस करेंगे जैसे कि मैसूर, बड़ौदा, नागपुर, सूरत, इंदौर, भोपाल, चंडीगढ़, इन तरीके के शहर जहां पर पॉपुलेशन इज बिटवीन 20 to 50 lakhs, जो कि बहुत कम नहीं है. द मार्केट साइज, द फ्लीट ऑफ टू व्हीलर्स इज क्लोज टू 2.5 to 4 lakh, जहाँ की टू व्हीलर्स भी काफी सारे हैं. और उसका नेटवर्क डिजाइन करते वक्त हमें 10 से 15 स्टेशन के अंदर हम वो शहर में हर कंज्यूमर को 2 किलोमीटर की रेंज में स्वैप स्टेशन अवेलेबल करवा पाएंगे. So we are working on that kind of a network. We believe that would be possible, and we'll start from there. सो दैट्स ग्रेट सर. एक्चुअली आई बिलीव आपका जो विजन है कि आप स्वैपेबल बैटरी स्टेशन इतने कम डिस्टेंस पे प्रोवाइड करेंगे, आई थिंक वो जो थर्ड पार्टी पार्टनरशिप है उसमें भी बहुत हेल्प करेगा. लाइक आजकल हम लोग देख रहे हैं जोमेटो हो गया, उबर ईट्स हो गए, तो दीज पीपल व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर पार्टनरिंग विद ईवी व्हीकल्स ताकि वो लोग सस्टेनेबिलिटी को भी प्रमोट कर सकें. आपका क्या विचार है इस पे कि आईवोमी आगे जाके जोमेटो जैसे कंपनीज के साथ पार्टनरशिप करना चाहेगा या आपके कुछ और प्लान्स हैं? 100% वो एक दैट्स एन कैटेगरी इन द बिजनेस. हम देख रहे हैं कि क्लोज टू 1 मिलियन राइडर्स ऑलरेडी इंडिया में आज एक्टिव हो चुके हैं जो कि कमर्शियल राइडर्स है, एंड ये नंबर 3 मिलियन तक जा सकता है 2028 तक. तो देयर इज अ वेरी बिग स्पेस which is growing and that will keep growing. So we want to leverage that. We want to work with them. We want to deliver the products which are custom and tailor made specifically for those riding condition, and we are working on that. उसके बाद मेरा जो आपसे दूसरा क्वेश्चन है वो ये है, हम लोग ने फरवरी 2023 में देखा कि आईवोमी ने क्लोज टू 140 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स इंडिया में सेल आउट किए, तो आपका उस पर क्या कमेंट है? इट्स अ रजिस्टर्ड नंबर जिसमें कितने कस्टमर ने, अगर आप ये चेक करोगे तो उसका 90% सेल जो है वो महाराष्ट्र में है, कुछ थोड़ा सा सेल जो है वो छत्तीसगढ़ में है, कुछ बहुत छोटा हिस्सा मध्य प्रदेश में है. तो महाराष्ट्र में वी आर ऑलरेडी एट एन टॉप 10 काइंड ऑफ नंबर्स. महाराष्ट्र में हमारा पेनिट्रेशन 45% हो चुका है ऑलरेडी. छत्तीसगढ़ में वी हैव ऑलरेडी क्रॉस 40% ऑल्सो.
मध्य प्रदेश में एंड गुजरात में विच आर द नेक्स्ट टारगेट्स टू अस, एडिशनली कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो हम लोग स्लो एंड स्टडीली करना चाह रहे हैं इसको, एज द प्रोडक्ट इज गेटिंग matured, the policy clarity is coming in terms of what will go on long term, the product clarity is coming in. We think that is the better way to grow faster and not doing it haphazardly and doing it in a structured way. सो फेज वन में हमने महाराष्ट्र टारगेट किया, फेज टू में हमने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। फेज थ्री में हम लोग कर्नाटका, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना ये स्टेट करेंगे, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट वर्जन जो तैयार होगा जिसमें हम राजस्थान और नॉर्थ इंडिया की तरफ जाएंगे। इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, एंड आई एम वेरी श्योर दैट वी विल नॉट वांट टू रश, बिकॉज दिस इज अ सर्विस इंडस्ट्री where the serviceability of the product is really crucial, and we should grow. It's like just a planned growth and a structured growth rather than doing it haywire and doing it unknowingly in multiple directions. हम्म, आपका आइडिया बहुत अच्छा है सर कि हैपहैज़र्ड ग्रोथ के बजाय हम लोग अगर एक सिस्टमैटिक ग्रोथ को फोकस करें तो वो एज अ कंपनी ज़्यादा स्ट्रांग हम लोग को पोर्ट्रे करेगा मार्केट में। तो उसके रिगार्डिंग मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपके प्रोडक्ट की बात करूँ, जीटेक्स हो गया या S1 हो गया, तो आपका डिज़ाइन इंस्पिरेशन कहाँ से आता है? डिजाइन इंस्पिरेशन इंडियन मार्केट से ही आया है। यहाँ पर जो स्कूटर का साइज है, हम आज भी मानते हैं दो टाइप के स्कूटर चलते हैं हमारे देश में। एक है जिधर ओवरऑल सीट, ग्राउंड टू सीट हाइट इज लाइक 740 से 760 की रेंज में, और एक थोड़ा छोटा है जिसको एक 10 इंच की कैटेगरी हम कहते हैं, और एक है जो बड़े साइज के स्कूटर चलते हैं जो कि फुल साइज की स्कूटर है, जहाँ द सीट लेंथ इज wider, the longer and wider too, and the overall width of the scooter is longer. And there is second category which is smaller size, you know, जो कम हाइट के लोगों के लिए उचित है, और जो एकदम ज्यादा लंबे डिस्टेंस के लिए नहीं जाना चाहते उनके लिए उचित है। तो ये दो कैटेगरी कस्टमर्स की है जो हमारे देश में स्पेसिफिकली गाड़ियां लेते हैं। तो वो दो कैटेगरी के लिए हमने दो स्कूटर बनाए हैं। वी आर अमंग्स द ओनली फ्यू कंपनीज जिनके पास स्पेसिफिक कैटेगरी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डिजाइन है, कि हम ये दो कैटेगरी को समझते हुए हमने दो ही प्रोडक्ट बनाए हैं और ये दोनों कैटेगरी को सफाइस करते हैं, ताकि एक रिटेलर जो है, एक डीलर जो है, वो हर टाइप के कस्टमर को उसको कन्विंस करके उनके लिए हमारी सोल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। तो ये माइंडसेट के साथ हमने हमारा ओवरऑल डिजाइन साइकिल जो है, R&D साइकिल जो है, ये प्लान किया है। उसके अलावा हमने कस्टमर की छोटी छोटी जो जरूरत है कि भाई उसे, आज कोई लड़की अगर गाड़ी चला रही है तो उसके पास एक हैंडबैग होगा, उसके बाद एक छाता होगा, उसके साथ उसका खुद का कुछ छोटा मोटा सामान होगा जो उन्हें डिक्की में रखने की आदत है या जरूरत है। हम वी हैव नोटिस 80% प्लस ऑफ द कंज्यूमर इस तरीके से सामान कैरी करते हैं अपने साथ, अपना हैंडबैग हो या जो भी हो, या कोई अगर हेलमेट कैरी कर रहा है, अगर हेलमेट मैंडेटरी है, अब हेलमेट मैंडेटरी हो चुका है हर जगह, तो हेलमेट कैरी कर रहा है, तो हेलमेट छोड़ के कहीं जाना इतना आसान नहीं होता है, तो डिक्की स्पेस हुई। उसके अलावा जो इंडियन फैमिलीज है जो सामान लेने जाती है, तो पैर के पास एक बैग रखने का उन्हें जरूरत होता है, तो पैर के पास की जो स्पेस है, जो पैर के पास एक छोटा सा हुक होना चाहिए, उसकी जरूरत है ताकि वो अपना बैग टंगा पाए। बहुत लोग अपने बच्चों को वहां बिठाते हैं, तो द वे इट शुड बी डिजाइन इन टर्म्स ऑफ द यूजेबिलिटी ऑफ इट, वो हमने काफी डिटेल में सोच के हमारा डिजाइन किया है स्कूटर। तो ये कम्प्लीटली इंडियन मार्केट के हिसाब से, आप अपने पैर के पास जो भी चीज यूज करते हो या कैरी करते हो उसको देखते हुए, आप किस मतलब सीट का साइज अगर आप चेक करोगे, सीट का कंफर्ट अगर आप चेक करोगे, उसमें जो ओवरऑल डिक्की स्पेस दिया गया है, या ओवरऑल आपके पैर के पास लेग रूम दिया गया है, या हैंडल के ऊपर जो लाइट जिस तरीके से पोजिशन है, ये सारी चीजें जो है ये इंडियन कंज्यूमर के मद्देनजर रखते हुए हमने हमारी स्कूटर डिजाइन करी है। ओके, तो मतलब इट्स लाइक बहुत इनोवेटिव थॉट है कि कस्टमर्स के बारे में सोचना और उनकी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करना। तो दिस ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन कि कंपनी जो कंज्यूमर रिड्रेसल है, मी एज अ कस्टमर, मेरे को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो आप लोग आईवोमी उसको कैसे एड्रेस करता है? हम हमारे डीलर्स के साथ हमेशा ये मतलब बात करते रहते हैं कि भाई आपको हमारा जो कंज्यूमर है उसकी टेक केयर करना है, उसको ध्यान रखना है। बट इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ये जो स्पेस है, ये स्पेस हैज सीन लॉट ऑफ रोड ब्लॉक्स, लॉट ऑफ मतलब एनी ग्रोइंग इंडस्ट्री फॉर दैट मैटर, जो इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, बीच में कोविड आ गया तो थोड़ा स्लो डाउन आ गया,
उसके बाद में काफ़ी दूसरे प्रकार की कठिनाइयाँ इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी, रेगुलेशन, सब्सिडीज़, ये सारों के साथ डीलर्स को मोटिवेटेड रखना, ये सबसे ज़्यादा क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसके ऊपर हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं कि कैसे हम हमारे डीलर्स को पॉजिटिव रख पाएँ, और इसी रीज़न से हम इसको एकदम फास्ट एक्सपांड भी नहीं करना चाह रहे हैं, ताकि जितने डीलर हमारे साथ जुड़े हैं, हम उनको कंट्रोल कर पाएँ, हम उनको मैनेज कर पाएँ, हम उनके साथ उतना गहरा संबंध बना पाएँ कि उन्हें ये पता हो कि यस, हम आपके साथ हैं, हम सर्विसिबिलिटी पे ध्यान दे रहे हैं। हालाँकि मार्केट इतनी फास्ट ग्रो नहीं हो पा रही थी कुछ साल से, बट पिछले 6 महीने से हम देख रहे हैं कि मार्केट एक्सेप्टेंस भी काफ़ी स्पीड में आ रहा है। तो जैसे-जैसे मार्केट में सेल बढ़ेगी, तो बिज़नेस विल कम इन। अब बिज़नेस जैसे-जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे-वैसे मोटिवेशन फ्रॉम बिज़नेस विल आल्सो स्टार्ट फ्लोइंग इन। But at today, when we are talking, the motivation is only by in terms of relationship, trying to keep them motivated, trying to give them new ideas, trying to give them solution to each and every problem they are facing on ground, and hand holding them so that we are together, and the feeling of togetherness is always there. This is one. हमारा एक कॉल सेंटर है जो कि कंज्यूमर नंबर हमारी हर गाड़ी हमारे बुकलेट पे दिया है। कोई भी डीलर, कोई भी कंज्यूमर जो आईओमी की गाड़ी यूज कर रहा है, इन केस उसको उसको प्रॉब्लम आ रही है और वो सॉल्व नहीं हो रही है, तो वो हमारे ईमेल आईडी पे लिख सकता है, हमें फोन कर सकता है। हालांकि हमें काफी लोगों के फोन भी आते हैं, ईमेल भी आता है, एंड देन वी अरेंज समबडी टू विजिट और सॉल्व द प्रॉब्लम लोकली देयर इन देयर मार्केट। सर, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि आप लोग अपने जो राइवल ब्रांड्स हैं, जैसे इंडिया में बहुत सारे हम लोग डेली ही देख रहे हैं, कोई ना कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर नया लॉन्च हो रहा है, नई कंपनीज आ रही हैं। जैसे थोड़े टाइम पहले रिवर इंडी एक इलेक्ट्रिक स्कूटर आया था। तो आप लोग अपने राइवल्स से कैसे कम्पीट कर रहे हैं? आपकी क्या अलग स्ट्रैटेजी है? मेरी स्ट्रैटेजी, आई डोंट नो, बट मेरी हमेशा से ये पहचान रही है, मतलब 10 साल पहले भी मैंने हमेशा ये देखा है कि मैं अगर रेस में भाग रहा हूँ तो मैं बगल वाले को देख के ना भागूं। मैं सिर्फ मेरे टारगेट, जो मेरा एंड लाइन है, वो एंड लाइन को देख के भागता रहूं और मेहनत करता रहूं। अगर मैं सही तरीके से भागता रहा और मेहनत करता रहा, तो आई एम वेरी श्योर मैं एंड लाइन तक पहुंच जाऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी कंपटीशन किसी के साथ नहीं है। मेरी कंपटीशन, या हमारी टीम की कंपटीशन आई शुड से, ये हमारी खुद से है। अगर हम लोग हमारे आत्मविश्वास के साथ हमारे जो टारगेट है, वो टारगेट के को ध्यान में रखते हुए अच्छी प्रोडक्ट की तरफ काम करते रहेंगे और भागते रहेंगे, आई थिंक मार्केट इज बिग इनफ एंड माय टारगेट्स आर वेरी स्मॉल to think of competition. We just want to take a very small piece of 3 to 5% of market share today, and keep achieving it. So मुझे वो लगता है, अगर हम अच्छा प्रोडक्ट बनाते रहेंगे, कंसिस्टेंट सर्विस देते रहेंगे, साफ सुथरा धंधा बिजनेस करें, किसी के साथ कोई गलत हो ऐसी मानसिकता से काम नहीं करें, तो मुझे लगता है समय के साथ ये इजीली हो जाएगा, एंड we'll have to keep running, focusing on to the target and not the competition. Thank you, sir, for such a positive response. This brings me to my last question. iVomi का फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान कैसा है? और हम लोग इन फ्यूचर iVomi के और प्रोडक्ट्स इंडियन मार्केट में या ग्लोबल मार्केट में देख सकते हैं या नहीं? हमारा रोड मैप नेक्स्ट 2 इयर्स का एकदम क्लियर है। हम लोगों का जीटेक्स मॉडल आया है, इसके बाद हम लोग जीटेक्स का नेक्स्ट अपग्रेड लॉन्च करेंगे 3 महीने के अंदर। हम लोगों की नई बैटरी लॉन्च करेंगे उसके 2 महीने के बाद, और हम लोग स्वैप स्टेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम मीनवाइल जब ये प्रोडक्ट अपग्रेड कर रहे हैं, हम लोग हमारा चैनल एक्सपेंशन में गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये स्टेट्स को हम लोग कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम हमारा चैनल स्ट्रेंथन करेंगे, और फिर उसके बाद हम राजस्थान से हम नॉर्थ इंडिया की तरफ काम करना शुरू करेंगे। तो सेल्स वाइज हम लोग हमारा चैनल स्लो एंड स्टडीली एक्सपांड कर रहे हैं। बाय May, you will see the speed is raising very fast, because the production and the overall understanding on the market is increasing, and the market is growing itself also. So इस तरीके से हम हमारा सेल्स चैनल भी ग्रो करेंगे। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ईयर अप्रैल तक we will start preparing ourselves for the export markets, where the same product with minor tweaks will start getting into the export market. We'll have to get some certifications, जिसकी स्टडी हमने शुरू कर दी है, और इस ईयर के एंड तक हम सर्टिफिकेशंस के लिए अप्लाई कर देंगे, ताकि हम नेक्स्ट ईयर में एक्सपोर्ट्स की तरफ आगे बढ़ पाए। Thank you, sir. It sounds like you have everything laid out. And thank you for being so patient and answering each and every question very nicely and patiently. And I wish iVomi all the best. Thanks a lot, Varnika. Appreciate it. Thank you.
इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या 5 साल चलेगी?